اس کہانی کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ پچھلے دونوں پارٹس کے لنک ڈسکرپشن اور کامنٹ سیکشن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل ٹال کے معزز ناظرین، تو تیسرے پارٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے دن صبح سویرے میں انکل ٹام کے اسٹور کے سامنے کھڑا تھا۔ انکل ٹام کے اسٹور میں دودھ، دہی، انڈے، مکھن، ڈبل روٹی اور غرض ناشتے میں استعمال کی جانے والی تمام اشیاء خورد و نوش دستیاب تھی، اس لیے صبح سویرے اس کے اسٹور پر بے تحاشا رش پایا جاتا تھا۔ میں رش لگنے کے انتظار میں تھا۔ مجھے خریداری کی ضرورت نہیں تھی۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ انکل ٹام کی رہائش اسٹور کے پچھواڑے میں تھی اور راستہ کاؤنٹر کے پیچھے سے ہو کر نکلتا تھا۔ انکل ٹام کا دودھ پیتا بچہ اکثر صبح کے وقت گہری نیند سویا رہتا تھا، اور ان اوقات میں مسز ٹام انکل ٹام کے ساتھ اسٹور میں ہاتھ بٹاتی دکھائی دیتی تھی۔ یعنی میرے خیال کے مطابق اس وقت جونیئر ٹام کمرے میں تنہا ہوتا تھا۔ میں رش کے دوران بآسانی بچے کو گھر سے اٹھا سکتا تھا۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میرے ہاتھوں میں بانس کی بنی ہوئی بڑی سی باسکٹ موجود تھی۔ 7:15 بجے کے قریب گاہکوں کا رش شروع ہوا اور 7:30 بجے تک رش نے شدت اختیار کر لی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے ٹوکری کو احتیاط کے ساتھ ہاتھوں میں تھاما اور اسٹور کے شیشے کے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھلنے پر مترنم گھنٹیوں کی آواز سے ماحول گونج اٹھا۔ مسز ٹام نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ میں نے گڈ مارننگ کہہ کر انہیں مخاطب کیا۔ انکل ٹام نے مسکراتے ہوئے مجھے خوش آمدید کہا، پھر انتظار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے گاہکوں کے ساتھ لین دین کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مسز ٹام بھی جلدی جلدی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں نے چور نگاہوں سے گاہکوں کی جانب دیکھا۔ ان میں سے کوئی بھی میری جانب متوجہ نہیں تھا۔ میں دبے قدموں کے ساتھ کاؤنٹر کے آخری سرے کی جانب چل دیا۔ یہاں چپس کے کارٹن، بیئر کے ٹین، ڈبل روٹی کے پیک موجود تھے۔ میں ان کی آڑ لیتا ہوا کاؤنٹر کے پچھلی جانب نظر آتے ہوئے رہائشی کمروں کے دروازے میں گھس گیا۔ یقیناً مجھے ایسا کرتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، ورنہ شور مچا دیتا۔ سامنے مختصر گیلری بنی ہوئی تھی جس میں آمنے سامنے 2 کمروں کے دروازے دکھائی دے رہے تھے۔ سیدھے ہاتھ والا دروازہ بیڈ روم کا تھا، جبکہ الٹے ہاتھ کی جانب والا دروازہ سیٹنگ روم کا تھا۔ میں نے بیڈ روم والا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ بچہ لکڑی کے پالنے میں نہایت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر نہایت احتیاط کے ساتھ بچے کو کمبل کے ہمراہ اٹھایا اور باسکٹ میں ڈال کر ڈھکن بند کر کے مختصر کنڈی لگا دی۔ پھر دبے قدموں کے ساتھ راہداری سے ہوتا ہوا اسٹور کے دروازے سے باہر نکل کر کاؤنٹر کے سامنے گاہکوں کے رش میں شامل ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر میں دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا تب انکل ٹام کی نگاہوں کا مرکز بن سکتا تھا۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے والی مترنم گھنٹی میری پوشیدگی کا راز فاش کر دیتی۔ وہاں گاہکوں کے درمیان میں زیادہ کھڑا رہنا بھی میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ ابھی میں سوچو بچار میں مصروف ہی تھا کہ ماحول دروازہ کھلنے کی مترنم گھنٹیوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ ایک گاہک اپنے 2 عدد بچوں کے ہمراہ اسٹور میں داخل ہو رہا تھا۔ انکل ٹام نے گاہک کی طرف دیکھا، پھر مطمئن انداز میں سر ہلا کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گئے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور تیزی کے ساتھ کھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ مجھے اپنے پیچھے شیشے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور باسکٹ کے ہمراہ پاگل خانے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ پاگل خانے کے مین دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد میں نے رہائشی کمروں کا رخ کیا۔ پاگل خانے کے بہت سے اسٹاف سے میرا سامنا ہوا، لیکن انہوں نے بات چیت نہیں کی کیونکہ وہ مجھے پاگل خانے سے باہر آتے جاتے دیکھنے کے عادی تھے۔ میں نے کمرے میں داخل ہونے کے بعد این سے مخاطب ہوتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا، ڈیئر میں کامیاب ہو گیا ہوں، یہ دیکھو تمہاری خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں تمہارا بچہ ہمراہ لے آیا ہوں۔ این نے بے تابانہ قدموں کے ساتھ آگے بڑھ کر ٹوکری کے اندر جھانکا، پھر خوشی سے چلاتے ہوئے بولی، بل ڈیئر، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گی۔ تم نے مجھے ماں بنا کر مجھ پر احسان ہی تو کیا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اسے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر بھلا کہاں رکھیں گے۔ اگر انہیں اس ننھے فرشتے کے متعلق بھنک بھی پڑ گئی تب وہ اسے یقیناً ہم دونوں سے جدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اگر ٹاؤن والوں کے علاوہ پاگل خانے والوں کو بھی بچے کی موجودگی کی بھنک پڑ جاتی تب وہ یقیناً بچے کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرتے۔ میں نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد چٹکی بجاتے ہوئے این سے مخاطب ہو کر کہا، پاگل خانے کا تہہ خانہ بچے کی پوشیدگی کے لیے مناسب رہے گا،
वहां कोई आता जाता नहीं है। एन इनकार में सर हिलाते हुए बोली, लेकिन वहां गर्मी का माकूल इंतजाम नहीं है, बच्चे को सर्दी लग सकती है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम सदियों से बंद पड़े इस आतिशदान की मौजूदगी से बेखबर हो, जो काड़ कबाड़ के सामान के पीछे पोशीदा है। लकड़ियां भी पागल खाने के स्टोर में बकसरत पड़ी रहती हैं। हम इनके जरिए तहखाने को गर्म रख सकते हैं। अब हमें दो बातें मलहूज नजर रखनी है। पहली ये कि बच्चे की भूख का मदावा क्यों कर किया जा सके, और दूसरी ये कि तहखाने की सफाई करना निहायत जरूरी है। अगर तुम्हारे पास कुछ रकम मौजूद हो तब मुझे दो, ताकि मैं सर हेनरी के उठने से पहले दूध वाली बोतल और दूध खरीद कर ला सकूं। एन ने इनकार में सर हिलाया, फिर परेशान लहजे में बोले, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी मौजूद नहीं, लेकिन मैं सर हेनरी के कमरे के खुफिया दराज से आगाही रखती हूँ, जहां वो रकम संभाल कर रखते हैं, और वो इसे ताला भी नहीं लगाते। मैंने चुटकी बजाते हुए कहा, तब फिर तुम रकम का बंदोबस्त करो, ताकि मैं बाहर के काम जल्द अज जल्द निपटा सकूं। एन ने इस बात में सर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने बास्केट में सोते हुए बच्चे की जानिब देखा। वो निहायत मासूम शक्ल बनाए गहरी नींद सोया हुआ था। तकरीबन 5 मिनट के बाद एन दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो इसके हाथे में रकम मौजूद थी। मैंने रकम लेकर जेब में रखी, फिर एन से पूछा, किसी को खबर तो नहीं हुई? एन ने इनकार में सर हिलाते हुए जवाब दिया, सन हेनरी सोए हुए थे, कमरा खुला हुआ था, तो मैंने अंदर दाखिल होकर निहायत आसानी के साथ रकम हासिल कर ली और वापस चली आई। ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, अब तुम पागल खाने वालों के उठने से पहले तहखाने को साफ करके इस काबिल बना दो कि वहां हमारा नन्हा आराम और सुकून के साथ रह सके। मैं दूध वाली बोतल और दूध लेकर अभी वापस आता हूँ। एन ने इस बात में सर हिलाया। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। खतरनाक पागलों की रिहाइश का इंतजाम मुख्तलिफ था। इस पागल खाने में अलहदा कमरे की सहूलत भी सिर्फ मुझे और एन को इसलिए हासिल थी कि हमारी शादी को सिर्फ 3 ही दिन गुजरे थे। अलावा अजी अलहदा कमरे की सहूलत नादार थी। मैंने पागल खाने का दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जब मैं अंकल टॉम के जनरल स्टोर के पास पहुंचा, तब मैंने वहां पुलिस वालों को मौजूद पाया। तमाम टाउन जनरल स्टोर के इर्द गिर्द जमा था। शायद तफ्तीश का अमल शुरू हो गया था। मैंने कदी कतराई और साथ वाली गली में घुसता चला गया। यहाँ करीब एक और बड़ा स्टोर भी मौजूद था। मैंने वहां से दूध की बोतल और दूध खरीदा, फिर खामोशी के साथ पागल खाने में चला आया। एन तहखाने को साफ करने में मसरूफ थी। मैंने काम में इसका हाथ बटाया। जूनियर टॉम उठ चुका था, लेकिन चीखने चिल्लाने के बजाय हैरत भरी नजरों से तहखाने के अजनबी माहौल को देखने में मसरूफ था। मैंने एन से मुखातिब होते हुए कहा, तुम दूध गर्म करो, जूनियर टॉम को रोना नहीं चाहिए, वरना तहखाने से बाहर स्टाफ को खबर हो जाएगी कि हम यहाँ बच्चे को छुपाए हुए हैं, तब वो हमारे लिए दरसरी का बायस बन सकते हैं। एन ने इस बात में सर हिलाया और मेरे हुक्म की तामील के लिए पागल खाने के बोर्ची खाने की जानिब चल दी। तहखाना साफ हो चुका था। मैंने आतिशदान में लकड़ियां इकट्ठी करके रखी और इन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। माहौल यखलक गर्म होने लगा। थोड़ी देर में एन दूध गर्म करके बोतल के हमरा तहखाने में ले आई। जूनियर टॉम भूख से बुलक रहा था। दूध पीते ही उछलने कूदने लगा, और अभी हम इसे गोद में उठाने के मुतालिक सोच ही रहे थे कि इसने अपने कपड़ों को गीला कर दिया। मैंने तफहीमी निगाहों से एन की जानिब देखा, तब वो पुरजोश लहजे में बोली, हमारे कमरे में मेरे 2 फालतू कपड़ों के जोड़े मौजूद हैं, मैं इन्हें काट कर तहखाने में ले आती हूँ। इसके कपड़ों का इससे बेहतर इंतजाम मजीद नहीं हो सकता है। मैंने इस बात में सर हिलाया और वह कुछ ही देर में कपड़े काट कर ले आई। हमने जूनियर टॉम के कपड़े तब्दील किए और इसके हमरा खेलने लगे। टॉम एक सेहतमंद, खूबसूरत और हंसमुख बच्चा था। वो चीखने चिल्लाने या फिर रोने के बजाय हमारे हमरा बखुशी खेलता रहा। इसने रोने की भी कोशिश ना की। एन की खुशी का आलम यह था कि वो नाश्ता करना भी भूल चुकी थी। मेरा दिमाग मुख्तलिफ सोचों के घेरे में था कि अब मुझे ऊपर अपने कमरे का रुख कर लेना चाहिए। मेरी अदम मौजूदगी शको शुबहात का बाइस बन सकती है। एन अगर बच्चे के हमरा तहखाने में भी रहती तब भी मुज़ाहिका नहीं था। मैं हालात को संभाल सकता था। इसलिए मैंने एन को तहखाने से बाहर ना निकलने की तलकीन की और खुद दरवाजे को बंद करके कमरे की जानिब चल दिया। वहां हालात नॉर्मल थे। मैंने गुस्ल किया और कपड़े तब्दील करने के बाद कुर्सी पर बैठकर हालात का जायजा लेने लगा। मुझे सोचते हुए 5 मिनट भी नहीं गुजर पाए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला और सामने जोसेफ को खड़े हुए पाया।
जोसेफ पागल खाने का सीनियर वर्कर था। इसने मुझे बताया कि नीचे हाल कमरे में सर हेनरी नाश्ते की मेज पर मेरे और एन के मुंतजिर थे। हमारी शादी के बाद 3 दिन मुझे और एन को नाश्ता डाइनिंग रूम में पागल खाने के डॉक्टरों और स्टाफ के हमरा दिया जा रहा था, वरना पागल खाने में मौजूद मजीद पागलों को यह सहूलत दस्तियाब नहीं थी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पागल खाने का ज्यादातर स्टाफ छुट्टी पर गया था। गिने चुने जो लोग बाकी थे वो अपने मामूल के काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। यही वजह थी कि इस वक्त नाश्ते की मेज पर सिवाय सर हेनरी के अलावा मजीद कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। मैंने सर हेनरी को सलाम करने के बाद कुर्सी खिसकाई और इनके करीब बैठ गया। उन्होंने तफहीमी नजरों से मुझे देखा और पूछा, एन दिखाई नहीं दे रही? इसकी तबीयत तो ठीक है? मैंने पहले से खड़ा हुआ झूठ दोहराया। जी इसकी तबीयत ठीक नहीं, रात को खाने के बाद से जो मतली और मोशन का रुझान हुआ वो अभी तक जारी है। ये सुनते ही सर हेनरी के माथे पर फिक्र अंगेज लकीरों का जाल फैलने लगा और वो परेशान कुल लहजे में बोले, कुछ दवा वगैरह का इंतजाम किया? अगर नहीं तो मैं दिए देता हूँ। मैंने इस बात में सर हिलाया और दूसरा झूठ निहायत बेबाकी के साथ बोल दिया। कमरे में टेबलेट मौजूद थी, मैंने इसे दे दी है। इससे अफाका भी हुआ है, लेकिन मतली की बदौलत इसे भूख नहीं लग रही, इसलिए नाश्ता हल्का फुल्का बाद में करेगी। सन हेनरी ने इस बात में सर हिलाया और खामोशी के साथ नाश्ता करने लगे। मैंने भी चाय का प्याला अपने सामने रखा और टोस्ट पर मक्खन लगाकर आमलेट के हमरा खाने लगा। कुछ देर खामोशी तारी रही। फिर कुछ देर सोचते हुए सर हेनरी चौंकते हुए बोले, आज टाउन में अजीब वाकया पेश आया है। बकौल जोसेफ के टॉम मेल्सन के घर से इसके दूध पीते बच्चे को अगवा कर लिया गया है। ना जाने वो कौन मरदूत था जिससे दूध पीते बच्चे में दिलचस्पी महसूस हुई। मैंने मक्खन और अंडा भरे निवाले के ऊपर चाय का बड़ा सा घूंट पीरा, फिर चेहरे पर मासूमियत के तासुरात नुमाया करते हुए कहा, बेचारा अंकल टॉम, मैं हमेशा इनकी दुकान से सौदा सलफ लाता था। जूनियर टॉम को मैंने भी देखा था, बहुत खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा था। क्या इसकी गुमशुदगी के बारे में कुछ पता चला? सन हेनरी ने आमलेट का टुकड़ा कांटे में फंसाने के बाद मुंह में रखा और चाय के घूंट के साथ निकलने के बाद जवाब दिया, पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन ताहाल कोई खातिर ख्वाह नतीजा सामने नहीं आ सका। मुख्तलिफ बातचीत के बाद मौजू तब्दील हो गया। मैंने नाश्ता मुकम्मल कर लिया। सन हेनरी ने मुझे एन का ख्याल रखने की ताकीद की और उठकर किचन की जानिब चल दिया। मैंने जोसेफ को कहकर एन के लिए मुख्तसर नाश्ता हमरा लिया और तय खाने में आ गया। एन ने नाश्ता किया। इसके बाद बाकी का आधा दिन हम दोनों बच्चे के हमरा खेलते रहे। शाम को पुलिस पागल खाने में मौजूद थी और सार्जेंट एंथोनी मुझे घूरे चला जा रहा था। इसके हाथों में जूनियर टॉम की तस्वीर थी और चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। सन हेनरी भी इसके हमरा थे। वो कर्ज लहजे में बोला, इसे पहचानते हो? इसने तस्वीर को मेरे चेहरे के सामने लहराते हुए पूछा। मैंने जवाब देने के बजाय इकरार में सर हिलाया। कौन है ये? इसने हैरत भरे लहजे में मुझे देखते हुए दोबारा पूछा। अंकल टॉम का लड़का, जूनियर टॉम, मैंने घबराए बगैर सपाट लहजे में जवाब दिया। कुछ देर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते रहने के बाद वो दोबारा हम कलाम हुआ। जूनियर टॉम इस वक्त कहाँ है? क्या तुम इस मुतालिक मुझे कुछ बता सकते हो? मैंने दोबारा इस बात में सर हिला दिया। इसने दोबारा हैरत भरी नजरों से मेरी जानिब देखा और बोला, क्या तुम वाकई बता सकते हो कि ये इस वक्त कहाँ है? इस दफा मैंने तंजिया लहजे में जवाब दिया। तुम मुझे इतनी हैरत के साथ क्यों देख रहे हो? मैं यकीनन बता सकता हूँ कि लड़का इस वक्त कहाँ है। तब फिर वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी बताओ, इसके माँ बाप बहुत परेशान है। सार्जेंट ने पूछा। क्या मतलब परेशान है? मैंने हैरत भरी निगाहों से इसकी जानिब देखते हुए कहा। मेरे ख्याल के मुताबिक जूनियर टॉम को अंकल टॉम के घर में ही होना चाहिए। वो अगर इसके घर में पैदा हुआ है तब इसकी मौजूदगी के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सार्जेंट एंथोनी ने दोनों हाथों से अपना सर पीट लिया, फिर लफ्जों को छिपाते हुए बोला, तुम आज सुबह अंकल टॉम के जनरल स्टोर में क्या करने गए थे? बहुत से टाउन वाले तुम्हारी वहां मौजूदगी के ऐनी गवाह है। इनके कहने के मुताबिक बच्चे की गुमशुदगी से कुछ पहले तुम्हें निहायत मुख्तसर वक्त के लिए स्टोर में देखा गया था। फौरन से बेशतर अपनी वहां मौजूदगी की वजह बयान करो। मैं दोबारा तंजिया लहजे में बोला, किसी जनरल स्टोर पर मेरी मौजूदगी का मकसद इसके अलावा मजीद क्या हो सकता है कि मैं सौदा सलफ लेने की नीयत से ही गया हूँगा। लेकिन तुमने कोई सौदा सलफ नहीं खरीदा। सार्जेंट एंथोनी फाड़ खाने वाले लहजे में बोला। मैंने मुतमईन लहजे में सोचा समझा जवाब निहायत मासूमियत के साथ दोहरा दिया। जब जेब में पैसे ही मौजूद नहीं होंगे तब खरीदारी भला क्यों कर हो सकती है?
सन हेनरी की निगाहों में शक व शुबहात की परछाइयां रक्स करती दिखाई देने लगी। जाहिर है वो इस बात से बखूफी आगाही रखते थे कि मुझे आज के दिन सौदा सरफ लाने के लिए पागल खाने से बाहर नहीं भेजा गया था। फिर भला अंकल टॉम की दुकान पर मेरी मौजूदगी क्या मायने रखती थी? दरअसल बात कुछ यूं है, मैं मामले से लुत्फ अंदोज होते हुए बोला, सन हेनरी इस बात से वाकिफ है कि मेरी बीवी एन की तबीयत कल रात से बहुत खराब है। इसे मतली और मोशन की बीमारी लायक है। सुबह पागल खाने में मुझे कोई भी उठा हुआ नहीं मिला, सब सो रहे थे। तो मैंने बाहर का रुख किया। मुझे मालूम था कि अंकल टॉम की दुकान में मुख्तसर मेडिसिन भी दस्तयाब होती है, लेकिन दुकान पर पहुंचकर मुझे याद आया कि मैं रकम लाना भूल गया हूँ, इसलिए बगैर खरीदारी किए वापस चला आया। यह तो अच्छा हुआ कि कुछ अद्वियात कमरे में मौजूद थी, इसलिए मुझे दोबारा दुकान पर नहीं जाना पड़ा। सार्जन एंथोनी ने इस बात में सर हिलाया और बोला, लेकिन मुझे इतलात भी मिली है कि इसके बाद तुम्हें बाजार में दोबारा देखा गया। तुमने इस दफा जून के जनरल स्टोर का रुख किया और वहां से दूध खरीदा। ये एक गैर फितरी बात थी कि तुमने दोबारा टॉम की दुकान का रुख करने के बजाय एक मुखालिफ दुकान की तरफ जाना बेहतर समझा। मालूमात करने पर मुझे ये भी पता चला कि ये वही वक्त था जब टॉम की दुकान में तफ्शीश का अमल शुरू किया गया था। मेरे चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया, लेकिन मैंने अपने आप को फौरन संभाल लिया और मुकम्मल खुद एतमादी के साथ जवाब देने की कोशिश की। मैंने हमेशा खरीदारी के लिए अंकल टॉम की दुकान का ही इंतखाब किया है, लेकिन दूध लाने के लिए जब मैंने इनका दुकान का रुख किया तब शायद इनकी दुकान पर तफ्शीश शुरू होने की बदौलत रश कुछ ज्यादा था। इनकी नासाज तबीयत को मलहूते नजर रखते हुए मैंने अंकल जून की दुकान पर जाने को मुनासिब समझा। सार्जन ने बात दरमियान में काट दी और पूछा, लेकिन सुबह सुबह तुम्हें दूध की जरूरत क्यों पेश आई? एन के लिए, मैंने बेसाख्ता जवाब दिया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसकी तबीयत कल से नासाज है। सार्जन ने इस बात में सर हिलाया, फिर कुछ देर सोचते रहने के बाद दोबारा हल कलाम हुआ। तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि लोगों के इंफॉर्मेशन के बाद जब मैंने मालूमात का सिलसिला शुरू किया तब पूछगछ करता हुआ जून की दुकान तक जा पहुंचा। जून ने मुख्तसर बातचीत के बाद इस बात का एतराफ किया कि तुम कुछ देर पहले इसके स्टोर पर आए थे। मजीद इस तस्वार पर इसने बताया कि तुमने दूध के अलावा शीशे की बोतल और निप्पल की खरीदारी भी की थी। तुम्हारे बयान के मुताबिक दूध तुम्हारी बीवी एन के लिए था, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आ रही कि दूध की बोतल भला तुमने किसके लिए खरीदी थी? क्या तुम ये मुझे बताना पसंद करोगे? मुझे अपने सर पर पहाड़ टूटता हुआ महसूस हुआ। दूध एन के लिए लाना मुमकिन था, लेकिन शीशे की बच्चों वाली बोतल? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर भी मैंने आखिरी कोशिश करते हुए जवाब दिया, मैंने दूध के अलावा अंकल जून की दुकान से बोतल नहीं खरीदी। वो झूठ बोल रहा है। एंथोनी मुस्कुराते हुए बोला, इसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं पहुंचा, लेकिन तुम्हें झूठ बोलने से फायदा पहुंचता है, क्योंकि तुमने बच्चे को पागल खाने में छुपा कर रखा है। अब सच सच बताओ कि बच्चा कहाँ है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, बच्चा पागल खाने में नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तब तुम इसे पागल खाने में तलाश कर सकते हो। सार्जन खड़े होते हुए बोला, मैं ऐसा जरूर करूंगा। इसने खामोश बैठे सन हेनरी की जानिब देखते हुए पूछा, आपको कोई एतराज तो नहीं? उन्होंने जवाब देने के बजाय असबाब में सर हिलाकर तलाशी लेने की इजाजत दे दी। तलाश का काम हमारे कमरे से शुरू किया गया। एन कमरे में मौजूद थी। शायद वो तहखाने से निकलकर हमारी मुख्तसर बातचीत सुन चुकी थी, क्योंकि इसके चेहरे पर उलझन के तासरात नहीं थे। मैंने इसे हालात से आगाह किया और बताया कि सार्जन एंथोनी जूनियर टॉम की तलाश में पागल खाने की तलाशी लेने आ चाहता है। इन्हें कुछ गलतफहमी हो चुकी है, इसलिए मेरे मुतमईन करने के बावजूद जिद पर अड़े हुए हैं कि पागल खाने की तलाशी लिए बगैर वो यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। एन के चेहरे पर फिक्रमंदी के तासरात उभरने लगे, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोली। सार्जन एंथोनी ने अपने मातहतों को तलाश का हुक्म दिया और पागल खाने में फैलते चले गए। सार्जन हमारे कमरे में चला आया। तकरीबन पौन घंटे के बाद तमाम पागल खाने की तलाशी ली जा चुकी थी, लेकिन बच्चे का वहां नामो निशान भी मौजूद नहीं था। सार्जन ने हैरान होकर सन हेनरी की जानिब देखते हुए पूछा, क्या यहाँ छुपने की मजीद जगह मौजूद है, मसलन तहखाना या फिर कोई खुफिया कमरा वगैरह? सन हेनरी ने असबाद में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ तहखाना मौजूद है, लेकिन वहां काड़ कबाड़ के अलावा कुछ नहीं। सार्जन पुरजोश लहजे में बोला, तब फिर हमें तहखाने तक ले चलिए, हम इसे चेक करना चाहते हैं। यकीनन बच्चा तहखाने में ही छुपाया गया होगा। मेरे साथ आइए, मैं आपको तहखाने में लिए चलता हूँ। सन हेनरी ने जवाब दिया और किचन के पास वाक़िया स्टोर रूम के अंदर बनी तहखाने की सीढ़ियों की जानिब चल दिए। मैं और एन भी परेशान चेहरा लिए इनके हमरा थे।
सीढ़ियां उतरकर जब हम तब तहखाने में दाखिल हुए, तब सन हिलरी के अलावा सार्जन की आंखों में भी उलझन के तासरात दिखाई देने लगे। साफ सुथरा तहखाना जिसमें सुलगता हुआ आतिशदान इस बात का मजहर था कि वो किसी की रिहाइश के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सन हिलरी की हैरत भरी आवाज सुनाई दी, ये कैसे हो सकता है? इसे साफ किसने किया? सार्जन एंथोनी ने यकदम पूछा। क्या आज से पहले ये ऐसा नहीं था? सन हिलरी ने इनकार में सर हिलाया। सार्जन के चेहरे पर सोच की परछाइयां रक्स करने लगी। फिर इसने अपने मातहत को इशारा किया और वो तहखाने की तलाशी लेने लगा। मैंने किन अखियों के साथ ऐन की जानिब देखा। इसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात थे, जैसे सब कुछ इसकी मर्जी के मुताबिक हो रहा हो। इसके अलावा वो मुकम्मल तौर पर खामोश रही। तहखाने की मुकम्मल तलाशी ली गई, लेकिन वहां से किसी भी किस्म का सुराग नहीं मिल सका। यकीनन यह सब ऐन की कारस्तानी रही होगी। इसने छुपकर मेरी और सार्जन की बातचीत सुनने के बाद बच्चे के अलावा इसके कपड़े और बोतल भी छुपा दी थी। मैंने इत्मीनान का तवील सांस लिया। सार्जन एंथोनी की जगह मेरे चेहरे पर मरकूज थी। वो तंजिया लहजे में बोला, अभी सुकून का सांस मत लो, आगे बहुत से मरहले बाकी है। तहखाने की सफाई, आतिशदान की तपिश और तुम्हारे बच्चे की बोतल की खरीदारी इस बात का इजहार कर रही है कि यहाँ कोई रिहाइश पजीर था। तहखाने के इस्तेमाल का मकसद सिर्फ यही हो सकता है कि पागल खाने वालों की नजरों से पोशीदा रहकर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहना। मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन जल्द मुकम्मल सबूत के साथ वापस आऊंगा। इसने पांव पटके और तहखाने की सीढ़ियों की जानिब चल दिया। सार्जन के जाने के बाद सन हिलरी ने हम दोनों से मुख्तसर पूछताछ की। इनकी आंखों में शको शुबहात की परछाइयां मौजूद थी। यकीनन वो ये जानकर मायूसी महसूस कर रहे थे कि इनका शादी वाला तजुर्बा नाकाम रहा था। बाहर खैफ उन्होंने ज्यादा बातचीत करना मुनासिब नहीं जाना और खामोशी के साथ अपने कमरे में चले गए। मैंने ऐन का हाथ थामा और अपने कमरे में चला आया। कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाने के फौरन बाद मैंने ऐन की जानिब देखते हुए इस्तफामिया लहजे में पूछा, बच्चा कहाँ है? यकीनन इसे तुमने छुपा दिया होगा ताकि हम दोनों गिरफ्तार न कर लिए जाए। ऐन ने इस बात में सर हिलाया और बोली, मैंने तुम्हारी और सार्जन की बातें सुन ली थी। मैंने बच्चे को इसके कपड़ों के हमरा छुपा दिया है और तुम मेरी अकल की दाद दोगे कि इतने पुलिस वाले सर तोड़ कोशिश करने के बावजूद भी इसे तलाश नहीं कर पाए। मैंने इस बात में सर हिलाया और इसे दाद देने के बाद बच्चे की पोशीदगी वाली जगह के मुतालिक दरियाफ्त किया। इसने फखरिया निगाहों से मेरी जानिब देखते हुए कपड़ों के इस ट्रंक की जानिब इशारा किया जिसमें हमारे कपड़े भरे हुए थे। जहां तक मुझे याद पड़ता था, पुलिस के सिपाही ने इसे भी खोलकर देखा था। इसके बावजूद मुझे अपने जिस्म के रोंगटे खड़े हुए महसूस हुए। अगर बच्चा ट्रंक में मुकफ्फल था, तब फिर पौन घंटे से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद न जाने अब तक जिंदा होगा या नहीं। मैंने दोबारा ऐन की जानिब देखा। इसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आरी था। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच कह रही हो और बच्चा ट्रंक के अंदर ही मौजूद है? हाँ, इसने कौन जहन बच्चे की मानंद इकरार में सर हिलाते हुए जवाब दिया। वो यकीनन ट्रंक के अंदर ही मौजूद है। मेरे ख्याल के मुताबिक इससे बेहतर और कोई जगह पागल खाने में दस्तयाब हो ही नहीं सकती। मैंने सर को झटककर दिमाग में उड़ते हुए बगोलों को मुंतशिर करने की कोशिश की और फिर आगे बढ़कर कपड़ों के ट्रंक के ढकने को झटके के साथ खोल दिया। मुख्तसर ट्रंक नुमा पेटी ऊपर तक कपड़ों से भरी हुई थी और वहां बच्चा मौजूद नहीं था। मैंने अपने पीछे खड़ी ऐन की जानिब सवालिया निगाहों से देखा। तब वो दोबारा मासूमियत भरे लहजे में बोली, बच्चा कपड़ों के नीचे पोशीदा है। अगर इसे ऊपर ही लटा देती तो अब तक पुलिस वालों के हत्थे चढ़ ही जाता। मैंने जिच होकर अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। इतने कपड़ों के नीचे बच्चे के जिंदा रहने की चांस ना होने के बराबर ही रह जाते थे। इतने कपड़ों के नीचे बच्चे के जिंदा रहने का चांस नामुमकिन थे। फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैंने कांपते हुए हाथों के साथ कपड़े हटाना शुरू कर दिए। मैं जिस कपड़े के जोड़े को भी अपनी जगह से हटाता था, वो दोबारा वहीं गिरता था। झंझलाकर मैंने कपड़ों को फेंकना शुरू कर दिया। ऐन मुझे ऐसा करते देखकर कहका लगाकर हंस पड़ी। मैंने हैरत भरी निगाहों के साथ इसकी जानिब देखा तो इसने बमुश्किल अपनी हंसी को रोका और मुझे हाथों के पास से थाम कर ट्रंक के पास से हटाया और ट्रंक के तकरीबन अंदर घुसकर कुछ तलाश करने लगी। सर्दियों के कपड़े कुछ ना कुछ तो यकीनन वजन रखते ही है। इसे कुछ दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन फिर अचानक ही इसका मुतहरिक जिस्म यकलक साख्त हो गया। शायद वो अपने मकसूद मकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। फिर जब वो बाहर आई तब मुझे अपना सांस हलक में फंसता महसूस हुआ। वो बच्चे को पांव के पास से थामे हुए थी और इसकी लाश ऐन के हाथ में ऐसे लटकी हुई थी
جیسے مردہ مرغی کی کھال کو اتار کر صوف والی ریڑھی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ این نے کہکا لگاتے ہوئے اسے سیدھا کیا، پھر سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے بولی، اسے سردی لگ گئی ہے، اس لیے خاموشی کے ساتھ ٹرنک میں لیٹا ہوا تھا، ورنہ یہ چپ بیٹھے والوں میں سے کہاں ہے۔ میں نے افسردہ نگاہوں سے جونیئر ٹام کی لاش کی طرف دیکھا، پھر این کو مخاطب کرتے ہوئے برائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ مر چکا ہے، تم بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہو چکی ہو، تمہیں اسے ٹرنک میں بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ این نے بچے کی لاش کو باہوں میں بھیجتے ہوئے جواب دیا، اگر میں ایسا نہیں کرتی تب پولیس والے اسے مجھ سے چھین لیتے، میں اسے اپنے آپ سے جدا نہیں ہونے دینا چاہتی۔ لیکن یہ مر چکا ہے، میں نے پریشان کن لہجے میں کہا، اب تم اسے مزید پاس نہیں رکھ سکتی ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے، این گھراتے ہوئے لہجے میں بولی، مرنے یا زندہ ہونے سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی جدائی میں برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے دوبارہ پریشان کن نگاہوں سے این کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر مستحکم تاثرات دیکھ کر میں معاملے کی گمبھیرتا کے متعلق بخوبی جان سکتا تھا۔ یعنی اگر میں اس سے بچے کو چھیننے کی کوشش کرتا تب وہ انتہائی اقدام اٹھانے سے گریز نہ کرتی، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموش ہو گیا۔ وہ رات تک بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ رات کا کھانا میں نے اسے زبردستی کھلایا۔ کھانے کے بعد جب وہ مختصر وقت کے لیے ٹوائلٹ گئی تب میں نے بچے کی لاش کو اٹھا کر دیکھ خانے میں موجود لکڑیوں کے ڈھیر میں چھپا دیا، پھر مختصر کپڑوں کے ڈھیر کے ساتھ ایک مصنوعی گڑیا کا بے ڈھنگ کا وجود بنا کر اسے کپڑوں میں لپیٹ کر بستر پر رکھ دیا۔ این نے باتھ روم سے باہر نکلتے ہی پہلی نگاہ بچے کے بے ڈھنگ کے وجود پر ڈالی۔ اس کے دماغ نے فوراً تبدیلی کو محسوس کر لیا، لیکن میں نے معاملے کو سنبھالتے ہوئے اسے سمجھایا کہ جونیئر ٹام کو ٹرنک میں سردی لگ کر بخار چڑھ گیا ہے، اس لیے میں نے اسے کپڑوں کے اندر اچھی طرح پیک کر دیا ہے تاکہ اسے مزید سردی نہ لگ سکے۔ بہتری اسی میں ہے کہ اب اسے دوبارہ کپڑوں میں سے باہر نہیں نکالا جائے۔ این نے مطمئن انداز میں سر ہلایا، پھر کپڑوں پر مشتمل بے ڈھنگ کے وجود کو اٹھا کر سینے کے ساتھ لگا لیا اور کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد دوبارہ بولی، جونیئر ٹام کا وزن بہت کم ہو گیا ہے، میرے خیال میں شاید اسے ایسا بخار کی وجہ سے ہوا ہے، ہمیں اسے دودھ پلا دینا چاہیے، کہیں اس کی طبیعت مزید خراب نہ ہو جائے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہارا خیال نہایت عقل مندانہ ہے، لیکن تمہارے باتھ روم جانے کے بعد میں بچے کو دودھ پلا چکا ہوں، اب اسے صرف گہری نیند کی ضرورت ہے، تم اسے ہلائے بغیر بستر پر لٹا دو تاکہ یہ پرسکون نیند سو سکے۔ این نے اس بات میں سر ہلایا اور کپڑوں کے بے ڈھنگ کے وجود کو احتیاط کے ساتھ بستر کے کنارے پر لٹا کر اس کے ہمراہ بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر لائٹ آف کر دی، پھر این کے ہمراہ بستر کے دوسرے جانب لیٹ گیا اور اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے 12 بجے کمرہ این کے خراٹوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ کمبل کو ایک جانب ہٹایا اور بستر سے نیچے اتر آیا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، جوتے پہنے، پھر نیچے تہخانے سے بچے کی لاش اور کھدائی کے اوزار اٹھائے اور نہایت خاموشی کے ساتھ پاگل خانے کی دیوار کو پھاند کر باہر نکل آیا۔ پاگل خانے کے گیٹ کو نہایت طاقتور تالے سے مقفل کر دیا جاتا ہے، یہ تالا صبح کے قریب کھولا جاتا ہے۔ پاگل خانے سے کچھ دور شیل ٹاؤن کا سرسبز و شاداب قبرستان واقع ہے۔ میں نے بچے کی لاش کو ایک جانب رکھا اور زمین کھودنے لگا۔ مٹی ہموار اور نرم تھی، اس لیے قبر آسانی کے ساتھ کھدتی چلی گئی۔ قبر تیار کرنے کے بعد جب میں نے بچے کی لاش کو اندر ڈال کر اسے ہموار کیا تب شیل ٹاؤن کی جانب سے لوگوں کے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ہڑبڑا کر اوزار اٹھائے اور یہ سوچتے ہوئے ٹاؤن کی جانب بھاگ کھڑا ہوا کہ شاید پاگل خانے والوں کو میرے باہر نکلنے کی اطلاع مل گئی ہے اور مجھے ڈھونڈنے کے لیے ٹاؤن کا رخ کر چکے ہیں، لیکن ٹاؤن میں پہنچ کر مجھے مختلف صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تھا اس کہانی کا تیسرا پارٹ۔ چوتھا پارٹ کل انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلے پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔